بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کے انتخابات۔ سالانہ انتخابات کے نتائج سٹی 21 نے حاصل کر لیے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کے سالانہ انتخابات کے نتائج سٹی 21 نے حاصل کر لیے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کے انتخابات ہیں۔ کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کے سالانہ انتخابات کے نتائج جاری کر دیے گئے جو سٹی 21 نے حاصل کر لیے ہیں۔ ڈاکٹر شاہ علی القدر 328 ووٹ لے کر صدر انجمن اساتذہ منتخب ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صالح رحمان صرف 179 ووٹ حاصل کر سکی ہیں۔ ڈاکٹر زبیر 338 ووٹ لے کر وائس پریزیڈنٹ انجمن اساتذہ منتخب ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر اسد تنولی 304 ووٹ لے کر سیکرٹری انجمن اساتذہ منتخب۔ ڈاکٹر ندا علی 277 ووٹ کے ساتھ خزانچی منتخب ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر معروف 309 اور ڈاکٹر فیصل احوال 385 ووٹ حاصل کر کے جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کے سالانہ انتخابات کے نتائج سٹی 21 نے حاصل کر لیے ہیں۔ آج سندھ کا محکمے کے افسران پر ڈنڈا چلانے کا فیصلہ۔ پولیس میں اندرونی احتساب کے لیے قائم محکمے کا اجلاس ہوا۔ پولیس افسران کے خلاف زیر التوا انکوائریز کا جائزہ لیا گیا۔ آئی جی سندھ نے تمام انکوائریز پر ایک ہفتے میں رپورٹ مانگ لی۔ افسران اور اہلکاروں کے خلاف ماضی میں کی گئی تادیبی کارروائیوں پر احکامات بھی دیے۔ بیورو کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آئی جی سندھ کا محکمے کے افسران پر ڈنڈا چلانے کا فیصلہ ہے۔ پولیس میں اندرونی احتساب کے لیے قائم محکمے کا یہ اجلاس ہوا ہے اور پولیس افسران کے خلاف زیر التوا انکوائریز کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ آج سندھ نے تمام انکوائریز پر ایک ہفتے میں رپورٹ مانگ لی ہے۔ افسران و اہلکاروں کے خلاف ماضی میں کی گئی تادیبی کارروائیوں پر احکامات بھی دیے گئے۔ بیورو کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ نومنتخب صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت کہتے ہیں کہ کسی پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں۔ اس سال پورا سپریم کورٹ بار اپنے معاملات آزادانہ طور پر چلائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عدالت عظمیٰ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ نومنتخب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت نے پیپلز لائرز فورم کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ فورم کے صدر قاضی بشیر نے نومنتخب صدر کو مسائل سے آگاہ کیا۔ شہزاد شوکت نے اپنے خطاب میں کہا کہ وکلاء کو درپیش مسائل کو دور کریں گے۔ اس بار سپریم کورٹ بار آزاد ہوگی۔ وکلاء کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ حل کرائیں گے۔ ہم نے آتے ساتھ ہی سر اپنی ہاؤسنگ کالونی پر بڑی ہم نے توجہ مرکوز کر رکھی اور یہ حقیقت ہے کہ پچھلے ایک سال میں کوئی خاص اس پر توجہ نہیں دی گئی، لیکن اب انشاءاللہ تعالی ہماری خواہش ہے اور آئی پرومس کہ ایک ڈیولپڈ ہاؤسنگ کالونی آپ کو ہماری پوری کوشش ہے کہ ود ان دس ایئر ہم آپ کو ڈیلیور کر کے دیں۔ تقریب میں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن احسن بھون، سینئر وکیل اختر حسین و دیگر بھی شریک ہوئے، جبکہ پیپلز لائر فورم کی جانب سے نومنتخب صدر سپریم کورٹ شوکت شہزاد کو اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ سندھ میں پہلی بار سانپ اور کتے کے کاٹنے سے بچاؤ کی ویکسین تیاری کے مرحلے میں ہے۔ یہ ویکسین سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ میں تیار ہو رہی ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ ہے۔ سندھ میں سانپ کے ڈسنے سے بچاؤ کی ویکسین کی تیاری تیز کر دی گئی۔ صحرائی علاقوں میں ہر سال سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے کئی اموات ہوتی ہیں اور سنیک بائٹس ویکسین کی ہمیشہ قلت ہوتی ہے۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کورنگی میں ڈائریکٹر جنرل لائیو اسٹاک سندھ ڈاکٹر نذیر حسین کلوڑو کی نگرانی میں ریسرچ کا کام مکمل ہو گیا، جس کے بعد ویکسین کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو 1,30,000 کم از کم ڈوز چاہیے سنیک بائٹ کے، اور سندھ کے اندر 54 سے 58,000 کے قریب ہمیں ڈوز چاہیے۔ تو اب ہمیں کیونکہ ایک وفاقی ادارہ ہے وہ پورا نہیں کر پا رہا تھا، تو سندھ نے یہ اپنے ہی سر پہ یہ ذمہ داری اٹھا کے اور ہم نے اس کی کوشش کی ہے۔ انسٹیٹیوٹ میں کتے کے کاٹنے سے بچاؤ کی ویکسین پر بھی کام جاری ہے۔ ڈاکٹر نذیر کلوڑو نے دعویٰ کیا کہ آئندہ سال سندھ کتے سے بچاؤ کی ویکسین کی تیاری میں خود کفیل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے مرحلے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کے مختلف اضلاع سے جتنے بھی وہ باولے یا پاگل کتے ہیں ان کے ہم نے سیمپل کلیکٹ کیے ہیں، اس کے سر لے لیے ہیں، اس کے برین سے وہ وائرس سے نکالا ہے۔ اب ہمارا یہ مرحلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ پورے سندھ کے اندر جتنے بھی اس سے وائرس ملتے ہیں وہ ایک جیسا ہے یا مختلف ہے، تاکہ ہم مختلف قسم کے ٹیکے بنائیں۔ پھر
सांपों और कुत्ते के काटने के सालाना हजारों वाकयात सूबा सिंध में रिपोर्ट होते हैं। दोनों बीमारियों से बचाव के वैक्सीन की तैयारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आजिज जमाली, कराची। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और गुलबर्ग टाउन के मुलाजमीन तनख्वाहों में कटौतियों के खिलाफ मैदान में आ गए। फंक्शनल लीग लेबर विंग की जानिब से गुलबर्ग टाउन में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। तनख्वाहों में कटौती पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और गुलबर्ग टाउन के मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में शरीक मुलाजमीन ने इंतजामिया के जानिबदाराना रवैयों की मजम्मत की। फंक्शनल लीग लेबर विंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर ने मजदूर दुश्मन फैसलों को मुस्तरद करते हुए एहतजाज जारी रखने का इशारा दे दिया। जो नीचे सतह के जो वर्कर हैं उनकी सैलरियों में कटौती चल रही है, मुसलसल चल रही है। हम आगाही कर रहे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैनों को बता रहे हैं जो फोकल हैं जमात की तरफ से। मुलाजमीन का कहना था कि रेगुलर मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती उनके अहल खाना को भूखा मारने और माल देने वाले घूसट मुलाजमीन को बचाने की करप्ट अफसरान की साजिश है। अब हम लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम लोग अब एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और फंक्शनल लीग लेबर विंग जो है अब बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। तो हम ये अपील करते हैं कि सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाए ताकि नेक्स्ट टाइम घूस्ट एम्प्लॉइज़ को बचने का मौका ना दिया जाए। अभी मेरी बगैर बताए, हालांकि मैं तो ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी पूरी की पूरी सैलरी उड़ा दी गई है। ठीक है ना, वजह कोई नहीं बताई गई है। ये अफसरान ये करते हैं कि भाई जाएंगे दिल ज़्यादा भेज देते हैं, बंदा जाता है सही है ना, इनकी मर्ज़ी से जाता है। अब ये कहते हैं कि जी तुम वहाँ थे, हम तुम्हारी सैलरी नहीं देंगे। इस वक्त मेरे को बगैर बताए, बगैर इन्फॉर्म किए मेरी पूरी सैलरी उड़ा दी गई। एहतजाजी मुलाजमीन बोले अब वक्त आ गया है कि करप्ट और अंगूठा छाप अफसरान की तालीमी इस्नाद और करप्शन की जाँच पड़ताल की जाए। जितने भी अफसरान हैं इनकी वैसी इंक्वायरियाँ चल रही हैं एंटी करप्शन के अंदर, और हम चाहते हैं कि अब इनकी पूरी फाइल चेक की जाए और इनको जो है इनकी चेक करके इनके मालूमात ली जाए कि इनके अफसरान जो बने हुए हैं इनकी ये लायबिलिटी है कि इस पर ये फाइज हुए हुए हैं। इसमें हमारे बहुत सारे अफसरान का हाथ है और पूरी सैलरी मेरी कटी है 2 महीने की। पहले मैं यहाँ पर गुलबर्ग टाउन में ही एम्प्लॉय रहा हूँ और मेरी जो सैलरी कटी है वो लियाकताबाद के अफसरान के नोटिफिकेशन के ऊपर कटी है। मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर बल्दियात से तनख्वाहों में कटौतियों को फौरी वापस लेने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन शकील खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। मेयर कराची ने जिला वस्ती में अल्लामा इकबाल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पार्क में क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड के साथ पार्किंग की सहूलियात भी मौजूद हैं। शहर की 106 शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को जल्द सोलर सिस्टम में मुंतकिल करेंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट है। बल्दिया उज़्मा कराची का जिला वस्ती की आवाम को बड़ा तोहफा। मेयर कराची ने डिप्टी मेयर के हमरा फेडरल बी एरिया में अल्लामा इकबाल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने पार्क में क्रिकेट और फुटबॉल भी खेली। इस मौके पर लोग मेयर कराची के साथ सेल्फियां भी बनवाते दिखाई दिए। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पार्क की तैयारी में 250 मिलियन रुपए की लागत आई है। मंसूबे में वाटरफॉल, एलिफेंट फाउंटेन, बच्चों का प्ले एरिया, फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची को तनकीद का निशाना बनाते हुए मेयर कराची का कहना था कि हाफिज नईम अपनी तस्वीर लगाते हैं, धरना देते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। जिला वस्ती में कामयाबी तराजू ने हासिल की है, लेकिन काम पीपल्स पार्टी और इसके जियाले कर रहे हैं। ये हक जंग जो है ना, वो ये है कि फलां ब्रिज पे मैं अपनी तस्वीर लगा दूं, फलां खंबे पे मैं अपना झंडा लगा दूं, उसी की चल रही है। और आप जहाँ जहाँ जाएंगे ना, आपको ये झंडे पे लगे हुए नजर। मैं मीडिया के दोस्तों को कहूँगा, प्लीज़ शारे नूर जहाँ जाएँ, अभी आपको जाते हुए नजर आएगा कि किसी और सियासी जमात ने उसको फतह कर लिया है। तो कराची के 7 अजला में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, काम होता हुआ नजर आ रहा है। साइड एरिया में बनाई गई 32 सड़कों का जल्द इफ्तिताह करने का अंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि लियारी और मलीर में भी तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेहतरी के सफर को जारी और सारी रखेंगे। कैमरामैन हारिस अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता कर दिया गया। शहरियों ने हुकूमती रिलीफ को मजाक करार दे दिया। मसीह जानेंगे मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपए 4 पैसे कमी के बाद 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर पर आ गया। पेट्रोल में मामूली कमी को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में कमी आटे में नमक के बराबर है। जब कम करते हैं तो उससे डबल 2 गुना तो 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं ये भाई पेट्रोल। यार बहुत सस्ता होना चाहिए यार, हम लोगों का बड़ा नुकसान है इसमें। कराची के बासियों ने पेट्रोल 2 रुपए सस्ता करने के हुकूमती इकदाम को मजाक करार दिया। शहरियों ने पेट्रोल 150 रुपए लीटर लाने का मुतालबा कर दिया। चल अच्छे की एक्सपेक्ट करते हैं कि 150 तक हमारा पेट्रोल हो जाए। हुकूमत को सलूट देना चाहिए, 2 रुपए कम हो गए पेट्रोल के हवाले से। हुकूमत ने पेट्रोल के साथ डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर कमी की है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 296 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। कैमरामैन वकास लोधी के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, ऊंट के मुंह में जीरा करार। ताजों ने 40 रुपए कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि सिर्फ 2 रुपए की कमी से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। काविश मेमन की रिपोर्ट है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। मैरिट रोड एसोसिएशन के सदर अहमद शमसी कहते हैं कि सिर्फ 2 रुपए की कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत 40 रुपए लीटर की कमी करके अवाम को रिलीफ दे। पेट्रोल की कीमत आज 2 रुपए कम की गई, ये बहुत बड़ा मजाक है अवाम के साथ। पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो तमाम चीज़ों पे अफेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। आज से 1 महीने पहले 40 रुपए का रिलीफ दिया गया था और उसके बाद 15 दिन में जब प्राइस सेट होते हैं तो आवाम को उम्मीद थी कि कम से कम 30-40 रुपए का मजीद रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल आर्मी मार्केट में कम हुआ है। $8-9 कम हुए इस दौरान, लेकिन बजाय कोई कमी के इन्होंने कोई कम करने के बजाय 2 रुपए यानी ऊँट के मुँह में जीरा और अवाम के साथ मजाक किया। ताजिर बोले हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान के अवाम के साथ इतना बड़ा धोखा और मजाक है ये कि जो IMF कर रही है वो ये लोग कर रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हैं और आज पड़ोस के मुल्क में देख लीजिए कितनी कम है। तो पाकिस्तान के आदमी खाए या पेट्रोल डलवाए। ताजिर कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी किए बगैर महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। कैमरामैन आकिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कारोबार के हवाले से खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड कायम हो गया। मार्केट में 100 इंडेक्स 57,000 की सतह उबूर कर गया। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज एक और यादगार दिन बन गया। मार्केट में सरमायाकारों ने दिल खोल कर सरमायाकारी की। 1 अरब 5 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार कर डाला। मार्केट में दिन के अख्ताम पर 716 पॉइंट्स के इजाफे से 57,397 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक निगरां हुकूमत के इक़दामात से IMF से कामयाब मुज़ाकरात और शरह सूद में मुमकिन कमी ने मार्केट में नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। IMF ने कह दिया है कि आप है ना इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में हम ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टी बिल्स और PIB के बाद ये थोड़ा सा सिंबॉलिकली 100 बेसिस पॉइंट करना चाहिए। तो IMF से आराम से हमें कर्जा मिल गया है। दूसरा ये डोनर कंट्रीज़ जो हैं वो भी गारंटीज दे रही हैं। तीसरा ये कि मुल्क में जो है ना सियासी हालात ठीक हैं और अगर वक्त पे इलेक्शन हो जाते हैं तो मे भी 70,000 से भी शायद ऊपर निकल जाए। मार्केट में 371 कंपनियों में कारोबार हुआ। 229 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 116 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नए कारोबार शुरू करने वाले के लिए ऑनलाइन ब्रोकर्स की सहूलत फ्राहम कर दी है। अब कोई भी ब्रोकर इनफरादी तौर पर ऑनलाइन सहूलत हासिल कर सकेगा। मज़ीद तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड पर इंतजामिया का बड़ा इकदाम। स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन ब्रोकर्स को सहूलत फराम कर दी गई। MD स्टॉक मार्केट फर्रुख खान का कहना था कि इस वक्त मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है, लिहाजा ऐसे में नए बिजनेस शुरू करने वालों ब्रोकर्स को ऑनलाइन की सहूलत फराम की जा रही है। देखिए, अगर कोई जेम पर आए तो हमने ऑलरेडी उसको बहुत जो है वो आसान किया हुआ है, मगर एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना कि इट हैज़ टू बी अ कॉर्पोरेट एंटिटी, क्योंकि कॉर्पोरेट होना तो कंपनी होना तो जरूरी है ना, बिकॉज इन दी एंड आप इन्वेस्टर जो है वो शेयर खरीदेंगे। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर राइदा लतीफ का कहना था कि ऑनलाइन सहूलत के लिए ना ऑफिस की जरूरत, ना कोई सर्टिफिकेट और ना कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। SECP ने लास्ट ईयर एक कॉन्सेप्ट पेपर और कॉन्सेप्ट नोट फ्लोट किया था ऑनलाइन ओनली ब्रोकर लाइसेंस का। सो कन्वेंशनल
تو کر ہی رہے ہیں, اس طرف جا ہی رہے ہیں بروکرز, بٹ وہ فن ٹیکس یا وہ ٹیکنالوجی کمپنیز جن کو اس ایریا میں آنا ہے, تو یہ ایک اسپیسیفک لائسنس ان کے لیے کریٹ کیا ہے, جس کو ہم آن لائن اونلی بروکر لائسنس کے. ایم ڈی اسٹاک ایکسچینج نے نگراں حکومت کے معیشت کے لیے کیے گئے اقدامات اور آئی ایم ایف سے کامیاب مذاکرات پر مبارکباد دی. کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. صنعت نے گیس کی قیمتوں میں دگنے اضافے کو مسترد کر دیا. چیف ایگزیکٹو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی زبیر موتی والا نے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا ہے. کہا گیس کے نرخوں میں اضافے کو انڈسٹری برداشت نہیں کر سکتی. رپورٹ کریں گے کاوش میمن. گیس کے نرخوں میں دگنے اضافے پر صنعت کاروں کا سخت رد عمل سامنے آ گیا. صاف کہہ دیا کہ گیس مہنگی کرنے سے صنعتوں کا چلنا مشکل ہو گیا. چیف ایگزیکٹو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی زبیر موتی والا نے صاف کہہ دیا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کو انڈسٹری برداشت نہیں کر سکتی. انڈسٹری کے پاس گیس کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل آپشن نہیں. حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے. اتنا اضافہ جو ہے وہ بھی اس وقت تو پوزیشن نہیں ہے کہ جو آپ کی جو انڈسٹری وہ اس کو ابزارب کر سکے. کم سے کم کراچی کی انڈسٹری کو تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ فیول نہیں ہے, نہ ہمارے پاس جگہ ہے, نہ ہماری انڈسٹری ٹیونڈ اپ ہے. تو اس کو جو ہے نا اگر اب اس وقت اگر اتنا 130% کے قریب کیپٹیو پہ بڑھایا ہے اور 100% سے زیادہ بوائلر گیس پہ بڑھایا ہے, تو یہ بہت زیادہ اضافہ ہے دونوں میں. اس کو جو ہے نا میرا خیال ہے کہ نظر ثانی ہونی چاہیے. زبیر موتی والا کا کہنا تھا کہ حکومت آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. سارا بوجھ صنعت کاروں پر ڈالا جا رہا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ حکام تک یہ بات کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں بھی سب سے بات کی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہم نے بات نہیں کی ہو, اور ہم اپنی پوری کوشش کریں. لیکن حکومت جو ہے نا وہ بھی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے بھی اگریمنٹ کرنا ہے, پھر آپ کا جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے حکومت یہ کام کرتی ہے. لیکن یہ دیکھنا بھی یہ بھی چاہیے کہ انڈسٹری اس کو ابزارب کر پائے گی کہ نہیں پائے گی. یہ ہماری التجا. صنعت کاروں نے گیس کی قیمتوں میں دگنے اضافے کو مسترد کر دیا. ساتھ ہی متعلقہ اداروں سے اس معاملے کو سنجیدگی سے حل کرنے کی اپیل کر دی. کیمرامین ابراہیم کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. سماج میں میانہ روی اور تحمل مزاجی جیسے عوامل ہوں تو معاشرہ امن کا گہوارہ ہوتا ہے. اقوام متحدہ کے تحت 16 نومبر کو دنیا بھر میں رواداری اور برداشت کا عالمی دن منایا جاتا ہے. عدم برداشت کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, جانتے ہیں مزید اس رپورٹ میں. صبر اور برداشت ایک ایسی خوبی ہے جس سے ایک صالح معاشرہ تشکیل پاتا ہے, اور جہاں لوگوں میں عدم برداشت ہو وہاں انتشار, بدعنوانیت, معاشرتی استحصال اور لاقانونیت جیسے ناسور جنم لیتے ہیں. آج دنیا بھر میں برداشت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد لوگوں کو مقامی, قومی اور بین الاقوامی سطح پر عدم رواداری کے نقصانات سے آگہی فراہم کرنا ہے. گزشتہ کچھ سالوں سے لوگوں میں برداشت کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگ مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. عمرانیت کے ماہر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے کے عقائد اور مذاہب کا احترام کرنا آج کل کے دور کی اہم ضرورت ہے. میانہ روی, رواداری, تحمل مزاجی, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, معاف کر دینا اور انصاف کرنا, یہ وہ خوبیاں ہیں جو ایک صحت مند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں. شہریوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں. ملیر بن قاسم ٹاؤن کے سرکاری اسکول کی عمارت کو مخدوش قرار دے کر خالی کرا لیا گیا. چند روز قبل اسکول کے آفس کی چھت گر گئی تھی, جبکہ کمروں کی چھت سے بھی پلستر اکھڑ رہا ہے. بن قاسم ٹاؤن کے گوٹ 22 سالار میں سیکنڈری اسکول کی عمارت کو مخدوش قرار دے کر خالی کرا دیا گیا. چند دن قبل اسکول کے آفس کی چھت گر گئی تھی, تاہم طلبہ کے لیے کسی متبادل جگہ کا بندوبست نہیں کیا گیا. اسکول میں 300 سے زائد طالب علم زیر تعلیم ہیں. طالبات نے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کے لیے جلد از جلد متبادل عمارت کا بندوبست کیا جائے. ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں مقامی طلبہ سے ڈالر میں فیس لینے کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج, پی ایم ڈی سی اور دیگر سے 27 نومبر تک جواب طلب کر لیا. ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج مقامی طلبہ سے بھی ڈالر میں فیس طلب کرتا ہے. روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی بڑھتی قیمت سے بچے لاکھوں روپے دینے پر مجبور ہیں. قائم مقام چیف جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے کہ یہ کیا چل رہا ہے, بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ڈالر میں فیس
फीस दें। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि क्या डॉलर कमाना यूनिवर्सिटी का काम है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि ये फैसला यूनिवर्सिटी सिंडिकेट लेता है जो कि खुद मुख्तार बॉडी है। अदालत ने डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, PMDC और दीगर से 27 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। जामिया कराची BA रेगुलर साल दोइम बाइम सालाना इम्तहानात बराए साल 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। नताइज के मुताबिक इम्तहानात में 4980 तलबा ने शिरकत की है। मज़ीद बताएंगी आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आयमा। जी बिल्कुल, जामिया कराची BA रेगुलर साल BA पार्ट 1 और पार्ट 2 के इम्तहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। नाज़िम इम्तहानात जामिया कराची डॉक्टर सैयद शाहिद ज़ुहैर के मुताबिक BA रेगुलर साल पार्ट 1 और पार्ट 2 के सालाना इम्तहान बराए 2022 के नताइज जारी कर दिए गए हैं। इम्तहान में 4980 तलबा और तलबात ने शिरकत की। 693 तलबा को फर्स्ट डिवीज़न जबकि 1256 तलबा को सेकंड जबकि एक तालिब इल्म को थर्ड डिवीज़न में कामयाब करार दिया गया है। कामयाबी का तनासुब 39.16% रहा है, जिसके नाज़िम इम्तहानात यही कहते हैं कि इस साल जो कामयाबी है पार्ट 1 और पार्ट 2 के रेगुलर के नताइज में जो कामयाबी का तनासुब है वो 39.16% रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की 16वीं कॉन्वोकेशन 18 नवंबर को होगी, जिसमें 495 तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की 16वीं कॉन्वोकेशन करीब आ गई, तलबा में जोश बढ़ गया। वाइस चांसलर ग्रीनविच यूनिवर्सिटी सीमा मुगल तमग़ा इम्तियाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कॉन्वोकेशन 18 नवंबर को होगी। 2 फैकल्टीज समेत 5 शोबेजात में तलबा को डिग्रियां तफवीज़ की जाएंगी। हमारे पास बेसिकली 2 फैकल्टीज़ हैं और 5 डिपार्टमेंट्स हैं और इन तमाम में बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि बिजनेस स्टडीज़ और मीडिया आर ऑन द टॉप ऑफ इट, मगर एजुकेशन में, लिटरेचर में, विजुअल इफ़ेक्ट्स एंड एनिमेशन में, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, जर्नलिज्म, सारी प्रोडक्शन, फिल्म, इसमें भी बहुत सारे बच्चे इस वक्त ग्रेजुएट हो रहे हैं। सीमा मुगल ने दाखिले के ख्वाहिशमंद खुसूसी अफराद को खुशखबरी सुनाई। बताया कि खुसूसी अफराद को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। सीमा मुगल ने दाखिले के ख्वाहिशमंद खुसूसी अफराद को खुशखबरी सुनाई। बताया कि खुसूसी अफराद को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। मेरा कंसर्न यहाँ ये है कि यहाँ पे वो स्कॉलरशिप उन लोगों ने हमारे उन 28 बच्चों को जो गोल्ड मेडल्स दिए हैं, उसमें हमारे पास TCS है, इंग्लिश बिस्किट, EBM है, हाई स्टार है, GFS है, सिद्दीक सन्स, बैंक अल-फला, HMR ग्रुप, नेशनल बैंक, इस तरह एक लंबी लिस्ट है। उन लोगों ने जिन्होंने हमारा बेइंतहा साथ दिया, उन बच्चों को गोल्ड मेडल देने में, जो कि अपने अपने डिग्रीज में हाईएस्ट अचीवर्स हैं। वाइस चांसलर ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का कहना था कि मुल्क में रोजगार के बहुत से मौके हैं, तलबा को सही रहनुमाई की जरूरत है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कराची में गिरां फरोशी करने वालों के खिलाफ खेरातंग असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन की जानिब से फेडरल बी एरिया वाटर पंप मार्केट में प्राइस कंट्रोल, चेकिंग और इंसदादे तजावुज़ात ने कार्रवाई की है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में जायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग टाउन हसन जफर की प्राइस कंट्रोल, चेकिंग और इंसदादे तजावीज़ात कार्रवाइयाँ जारी। वाटर पंप फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद पकड़े गए। कार्रवाई के दौरान जुर्मानों के साथ आज हमने अचानक से एक सरप्राइज विजिट किया है वाटर पंप मार्केट का। इसके हवाले से जो है ना काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस मुझे नज़र आई। जो वायलेशंस थी उनको तकरीबन 7-8 दुकानदार हैं जिनको हमने फ़ाइन भी किए हैं, हैवी फ़ाइन इम्पोज़ किए हैं। 3 दुकानें हमने सील भी की हैं और ये हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं इंशाल्लाह डेली बेसिस पे अब जो है ना जारी रहेंगी, क्योंकि वाटर पंप हमारी एक बड़ी मेन मार्केट है गुलबर्ग सब डिवीज़न की। यहाँ से बाहर वाली सब डिवीज़न से भी लोग आते हैं, तो अभी मैं जो है ना प्लान यही कर रहा हूँ कि इस पर डेली जो है ना हम अपनी ओवरसाइट रखेंगे। शहर में ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयों पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। किसी ने ऑपरेशन की हिमायत की तो कोई इसकी मुखालफत करता दिखाई दिया। धनिया पुदीना 20-20 रुपए का था, अभी 10-10 रुपए का हो गया।
और इसके अलावा भी 100 की चीज़ 200 में बेचते हैं यहाँ पर। अपने रेट से दे रहे हैं, प्राइस लिस्ट थोड़ी दिखाते हैं, ये जब आप लोग आते हैं जब रखते हैं प्राइस लिस्ट। तजाविज़ात और गिरा फरोशी शहरियों के लिए नासूर बनी हुई है, जिसके खिलाफ तवातुर के साथ मौसर कार्रवाइयाँ ही इनसे शहरियों को निजात दिला सकती है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। निगरान सिंध सरकार ने 15 महकमों में अफसरान के तकर्रुर तबादलों का फैसला कर लिया। अफसरान की उखाड़ पछाड़ और खाली ओहदों पर तैनाती की सिफारिश की कॉपी सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हासिल कर ली है। आज़ाद नूरियों की रिपोर्ट देखिए। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का फैसला। अफसरान की उखाड़ पिछाड़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से की जाएगी। अफसरान तैनाती से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की अरसाल करदा सिफारिश पर नजरसानी भी होगी। डॉक्टर वसीम शमशाद सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और अहमद बख्श नारिजो को सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट तैनाती की सिफारिश कर दी गई। DGKDA ताहिर हुसैन सांगी को सेक्रेटरी मादनियात और अहमद सुल्तान खोसो को सेक्रेटरी अकलियती उमूर तैनात करने की सिफारिश की गई। अबू बकर अहमद को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी और जुबैर परवेज अहमद को MD सिंध रेगुलेटरी अथॉरिटी तैनात करने की सिफारिश कर दी गई। शाजिया जाफर को डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी तैनात करने और DG सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन को ओहदे से फारिग करने की सिफारिश कर दी है। अंजुम इकबाल जमानी को डायरेक्टर जनरल साहिली तरक्की अथॉरिटी और रुबीना आसिफ को डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एविलेशन सेहत तैनात करने की सिफारिश कर दी है। मोहम्मद शरीफ शेख को डायरेक्टर जनरल गोरख हिल तरक्याती अथॉरिटी और घंगोर अली लगारी को सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ इंसानी सेटलमेंट तैनात करने की सिफारिश की गई। अतहर हुसैन मीरानी को डायरेक्टर जनरल लियारी तरक्याती अथॉरिटी और फयाज हुसैन अब्बासी को कमिश्नर सखर तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। कमिश्नर सखर समीउद्दीन सिद्दीकी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी कोऑपरेटिव तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शाहिद अब्दुलसलाम को ओहदे से फारिग करने की सिफारिश कर दी गई है। आज़ाद नोहलियो, सिटी 21। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर इंतज़ाम SSUET इंटर हाउसेस स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद की गई है। लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ ने बच्चों की हौसला अफजाई की है। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट है। नौजवानों की सलाहियतों का इम्तिहान। सर सैयद यूनिवर्सिटी में सज गया खेलों का मैदान। सर सैयद यूनिवर्सिटी में 7 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने शिरकत की। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। मेहमान खुसूसी लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना ने स्पोर्ट्स गाला को खुशाइंद करार दिया और कहा अगला कलंदर सर सैयद यूनिवर्सिटी से होगा। डेफिनेटली कोई ना कोई नया अच्छा टैलेंट जो है वो सामने आएगा। और अब जिस तरह सर सैयद यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं और यहाँ पे स्पोर्ट्स गाला जो है बना रहे हैं, सो यहाँ से भी हमारी ख्वाहिश होगी कि यहाँ भी हम कोई ट्रायल करें और अगर कोई अच्छा टैलेंट मिले तो पाकिस्तान को अच्छा पढ़ा लिखा टैलेंट जो है वो हम दे सकें। स्पोर्ट्स गाला में यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उनका कहना था यूनिवर्सिटी का अच्छा इकदाम है, पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, एज लड़की नहीं मतलब एज ए स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। ये तो लाइक एक सॉर्ट ऑफ हमारी, क्योंकि पढ़ाई में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, तो वी नीड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि लाइक एक सॉर्ट ऑफ हर पैमाने पर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो स्पोर्ट्स होना काफ़ी ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। स्पोर्ट्स गाला में 15 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे जो 7 रोज तक जारी रहेंगे। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल की जानिब से फ़न गाला का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानेंगे हम निसार से। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं फाउंडेशन पब्लिक स्कूल पर मौजूद हूँ जहाँ फ़न गाला एक्टिविटी का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ ऐसी रखी गई थी? यहाँ पे हर किस्म की एक्टिविटीज़ रखी गई हैं तालिब इल्मों के लिए। स्पोर्ट्स से लेके जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है उसको आर्ट में डिस्प्ले करते हुए ट्रक आर्ट के लिए काफ़ी सारे पोस्टर्स बनाए गए हैं, बोर्ड्स बनाए गए हैं, पेंटिंग्स बनाई गई हैं। एनिमे जो आजकल काफ़ी बच्चों का फेवरेट चल रहा है, उसके लिए उसका कैरेक्टर है नारुतो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई गई हैं। वहाँ हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। टग ऑफ वॉर हो गई, आर्म रेसलिंग हो गई, प्लैंक्स एंड पुशअप्स के चैलेंजेस हो गए। और उसी के साथ साथ ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारे पास काफ़ी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी चीज़ें हैं। हमने एक हाइड्रोपोनिक रॉकेट बनाया जो हवा और पानी के थ्रू चलता है, और उसके साथ साथ हमारे पास काफ़ी सारे डिस्प्लेज में रिवॉर्ड्स भी बनाए गए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। उसके अलावा आप
بتاؤ اور کیا کیا چیزیں یہاں رکھی گئی ہیں، کیونکہ یہاں پہ صرف فن ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہے. آپ بتائیے گا اور کیا کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہے جس میں آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور آپ کو یہاں دیگر لوگوں کو بھی کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہو؟ تو یہاں پہ ہم نے بہت ساری طرح کی الگ الگ ایکٹیویٹیز رکھی ہیں، جیسے کہ جو چھوٹے گریڈ لیولز ہیں ان کو ہم نے انٹرپرینیورل سکلز اپنی شو کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا ہے. یہاں پہ وہ اپنی چیزیں خرید کے خود بنا کے یہاں پہ بیچ رہے ہیں، تو یہ ان کو ایک اچھا ہم نے موقع دیا ہے کہ وہ اس طرح کے چھوٹے پلیٹ فارم پہ چھوٹے اسکیل پہ سیکھ سکیں ان چیزوں کا. شکریہ. ہمارے ساتھ طالب علم اسکول کے موجود ہیں جنہوں نے بتایا کہ کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز رکھی گئی ہے، اور یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز رکھنے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف فن فراہم کیا جائے، بلکہ ایسی بھی چیزیں یہاں رکھی گئی ہیں جس سے تفریح کے ساتھ ساتھ لوگ یہاں جو بچے ہیں وہ سیکھنے کے مراحل میں بھی جاتے ہیں. اور نہ صرف جیسے کہ بتایا گیا ہے یہاں پہ طالب علموں نے بتایا کہ AI میں بچوں نے کافی ایسی ایکٹیویٹیز بنائی ہے. اس کے علاوہ سنگنگ ہو اور اسٹیج پرفارمنس ہو، اس کے علاوہ اگر کاروباری لحاظ سے بچوں نے اسٹالس لگایا ہوا ہے، اس کے علاوہ اسپورٹس کو بھی انہوں نے کافی آگے رکھا ہے، جس کے بعد یہاں کے جو طالب علم ہیں وہ ہر میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھ رہے ہیں. جی